प्यारे बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश का चैप्टर द लास्ट लेसन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हमने पहले क्या पढ़ा था। उसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको बता देती हूँ। द लास्ट लेसन के ऑथर हैं अल्फोंस डोडे। दिस चैप्टर इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको-प्रुशियन वॉर. The narrator of this chapter is a little boy Franz was getting late for school. He was supposed to be prepared with the rules of participles, but he did not know a word about them. So he was afraid of being scolded by M. Hamel, his French teacher. It was a fine, bright morning. Birds were chirping and Prussian soldiers were drilling. It was a tempting scene. Franz thought to spend the day out of doors and to skip the school. But he had the strength to resist this temptation and he hurried off to the school. When he passed by the town hall, he saw a huge crowd in front of the bulletin board. For 2 years, they were getting all bad news related to war from there. Franz wondered what could be the matter then. But he did not stop to find it out. The blacksmith washer, who was also standing there with his apprentice, called after him and said, "Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." Franz thought he was making fun of him. Franz reached the school. Usually, when the school began, much noise could be heard from outside in the street. But that day, there was no noise of opening and closing of desks, lessons being repeated in unison, or the teacher's ruler being rapped on the table. It was as quiet as a Sunday morning. Franz saw through the window that his classmates were sitting at their places. Mr. Hamel was walking up and down. Franz earlier counted on the commotion to enter into his class unnoticed. But now he had to open the door before everyone. He was feeling very ashamed and frightened. But Mr. Hamel said to him very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." As Franz took his seat, he noticed Mr. Hamel's dress. He was in his beautiful green coat, frilled shirt, and little embroidered black silk cap. He used to wear this dress only on inspection and prize days. The thing that surprised him most was to look at the villagers who were seated at the back benches. Old Hoser, former mayor, former postmaster, and other villagers were sitting there in the classroom. Mr. Hamel said in a grave, gentle tone, "My children, this is the last lesson I shall give you." Mr. Hamel declared that an order had come from Berlin only to teach German in the schools of Alsace and Lorraine. He told that new German teacher was coming the next day. Mr. Hamel wanted all to be very attentive for their last French lesson. These words of Mr. Hamel were like a thunderclap to Franz. Franz was feeling very sorry for not learning his lessons. He was very sorry
for not paying attention to his studies, as he did not know how to write his language properly. He used to feel that his books were a nuisance, but now he felt those to be like his old friends, and he did not want to give up his books. He also forgot about Mr. Hamel's ruler and his crankiness. Now everything was clear to friends. Why Mr. Hamel was in his Sunday clothes? It was in the honor of his last French lesson. It was also clear why the villagers were sitting there at the back benches. It was their way to pay their respect to Mr. Hamel's 40 years faithful service to school. It was also their way to pay attention to their nation, which was theirs no more. Now it was Friend's turn to recite the rules of participles, but he got mixed up on the first words, and he did not dare to look up. Mr. Hamel said that he wouldn't scold him because he must feel bad enough. He said that it was a problem with all the people of Alsace because they put off their learning till the next day. He said that thus they had given the opportunity to their colonizers or the foreigners or the Germans to say, "You call yourself Frenchmen and you can neither speak nor write your language." Mr. Hamel also held parents and himself responsible for this situation. He said that your parents were not anxious enough to have Mrs. Hamel said that their parents were not anxious enough to have them learn. They prefer to send them to farms or mills so that they could earn some more money. He also held himself responsible for this situation. He said that he sometimes used to send them to water his plants, and when he wanted to go for fishing, he gave them holiday instead of making them learn their lessons. Mr. Hamel then told them about the importance of their language. He said that French was the most beautiful, clearest, and the most logical language of the world. He urged them to guard their language because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then Mr. Hamel read them a lesson, and Friends was amazed to see that he understood the lesson so well. It was because of two reasons. That day, Friends listened very attentively, and Mr. Hamel taught with much patience. Mr. Hamel wanted to teach them everything he knew. तो बच्चों, हमने यहाँ तक पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था और अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे फ्रेंड्स को रियलाइज़ होता है कि उसने अपना टाइम कितना वेस्ट किया है और अपनी स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। तो मिस्टर हेमल, जो उनका आखिरी दिन है आज स्कूल के अंदर, वो जितना कुछ जानते हैं वो आज सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं और एक बार में ही सब बच्चों के दिमाग में बिठा देना चाहते हैं। So let's start reading further. After the grammar we had a lesson in writing. ग्रामर का पाठ पढ़ने के बाद
हमने लिखने का काम किया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। और बड़े ही सुंदर अक्षरों में उन कॉपियों पर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम और हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। हमारे डेस्क पर रखी हुई वो किताबें ऐसे लग रही थी जैसे कि छोटी छोटी झंडियाँ लहरा रही हों। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। देखने वाली बात थी कि कैसे हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज अ स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ जो आवाज़ आ रही थी वो थी कागज़ के ऊपर पेन के चलने की आवाज़। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। एक बार कुछ बीटल्स भी अंदर आईं, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। बीटल्स एक तरह के इंसेक्ट होते हैं, उड़ने वाले। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। वो भी अपनी फिश हुक की ड्राइंग बनाने में बिजी थे। एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच में ही बना रहे हों। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने अंदर ही अंदर सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब भी मैं अपने लिखने का काम करते हुए ऊपर देखता तो मैं एम हेमल को अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर पाता। वो कभी एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते, फिर दूसरी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते, एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हों जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम में सारी चीज़ें कैसे रखी हुई थी, कैसे दिखती थी। फैंसी, इमेजिन करके देखो, फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। वो एक ही स्थान पर रहे हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनकी विंडो के बाहर उनका बगीचा, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और सामने उनकी कक्षा। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ। सिर्फ डेस्क और बेंच घिस गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। बगीचे में लगे हुए अखरोट के पेड़ लंबे हो चुके थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो बेल उन्होंने स्वयं लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, वो खिड़की से होती हुई छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। बेचारे सर का दिल कितना टूट रहा होगा इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने की वजह से। To hear his sister moving about in the room above packing their trunks. ऊपर उनकी बहन जो कि ट्रंक्स में अपना सामान पैक कर रही थी, वो आवाज़ें सुनकर उनका दिल कितना टूट रहा होगा। For they must leave the country next day, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि वो हर पाठ आखिर तक सुने। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के काम के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, और उसके बाद बच्चों ने अपना बा बेबी बोबू गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। पीछे कमरे में बैठे हुए बूढ़े होजर ने भी अपना चश्मा लगा लिया था। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स,
अपनी प्राइमर की बुक दोनों हाथों में पकड़े हुए स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी बच्चों के साथ बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ भावनाओं की वजह से काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उसको सुनना इतना मज़ेदार था कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन, कितने अच्छे से याद है मुझे अपना आखिरी पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजेलिस की घड़ी में 12 बजे, मतलब चर्च क्लॉक और एंजेलस क्लॉक ने 12 बजाए। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows, और तभी अभ्यास से लौटते हुए प्रशियन सोल्जर्स की, प्रशियन सैनिकों की तुरही की आवाज़ हमें सुनाई दी। एम हेमल stood up very pale in his chair, एम हेमल खड़े हो गए और वो बहुत ही पेल लग रहे थे, कलरलेस लग रहे थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, तो लुक सो टॉल बच्चों ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू बिहेव इन अ ब्रेव प्राउड मैनर और इन अ कॉन्फिडेंट वे। तो वो बड़े ही बहादुर लग रहे थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, और वो बोले मेरे मित्रों, आई, लेकिन वो रुक गए। बट समथिंग चॉक्ड हिम, किसी वजह से उनका गला जो है वो रूंध गया। ऑब्वियसली बच्चों वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे और वो आगे कुछ नहीं कह पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चौक का टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाइवेला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुके। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर को दीवार के सहारे टिकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस, उन्होंने हमें एक इशारा किया विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हुआ। यू मे गो, आप जा सकते हो। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से हमें कुछ बातें सीखनी चाहिए। पहली बात ये कि हमें अपनी पढ़ाई की तरफ तो पूरा ध्यान देना ही चाहिए, और अपने पढ़ाई को अपने पढ़ाई के प्रति नॉन सीरियस नहीं होना चाहिए। अपना आज का काम हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें इस चैप्टर से यह सीखनी चाहिए कि हमें अपनी मातृभाषा से प्यार होना चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा और मातृभूमि से प्यार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारी पहचान देती है। ये चैप्टर सिर्फ फ्रांसीसियों के लिए नहीं है, ये चैप्टर एक संदेश है सभी लोगों के लिए। सभी को अपने देश से, अपनी मातृभूमि से, अपने मातृभाषा से प्यार करना चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बच्चों ये 2 क्वेश्चंस और हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे, स्कूल में उस दिन क्या बदलाव हुए बर्लिन से आए हुए आदेश की वजह से। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, फ्रेंड्स की फीलिंग एम हेमल और स्कूल के बारे में कैसे बदलती है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो भी आप कर लें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये चैप्टर अपने आप से फिर से पढ़ लें, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर बताएं। सो
thank you and happy reading.